welcome back to Wedcast. I'm your host Geetika Mishra, and today we are diving into a topic that has been reshaping the institution of marriage in India. It is divorce. More and more couples are choosing to part ways, and this is not just altering societal norms but also making many people hesitant about getting married in the first place. So is marriage losing its relevance, or is it simply evolving? And how does this affect arranged marriages, which have been a cornerstone of Indian society for generations? To help us decode these changing dynamics, I am joined by none other than the OG matchmakers Sachin and Shalu, the power duo behind Make My Lagan, who have facilitated over 1,000 matches and have an insider's view on how modern couples and families approach marriage today. Welcome Sachin ji, welcome Shalu ji. Hello. Welcome back once again. Thank you so much. So, you know what, just to set the stage right, and numbers always help. So, I'm just going to throw some data in front of you. See, traditionally, arranged marriages, as I said in the introduction, have been the cornerstone of Indian society. But now what has happened that even though only there is a 1% divorce rate in India, That's has the lowest. increased. It has increased. It is the lowest compared to Western countries. Western countries are at least 30 to 40% or maybe 45%. Even more than that. But even this 1% has increased, and which is very rare in our country. And even if it's 1% overall, you know, in cities like Mumbai, Bengaluru, Delhi, these are as much as 40 to 45%. Now, my question to you is that, you know, when families approach you for marriages, do you think they come with a worry in the back of their head कि हमारे बच्चों की शादी चलेगी कि नहीं चलेगी? So, even before getting married, the fear of divorce is there. Do you think that happens? Yeah, it's happening nowadays because हमारे पास बच्चे आते हैं और वो मैरिज का उनको एक फेयर है. बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते हैं. समटाइम्स पेरेंट्स आके बोलते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने इतना डिवोर्स रेटो जो है रेशो बढ़ गया है कि वो उनको शादी के नाम से ही डर लगता है. दे आर थिंक कि आजकल मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही है एंड एक फियर रहता है, तो वो डिसीजन लेने में, कमिटमेंट करने में बहुत घबराते हैं. तो दिस इज द रियल एंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया नाउअडेज कि जो बच्चे हैं वो डिवोर्स के नाम से, शादी के नाम से डर रहे हैं. Okay, and why do you think this is happening? देखो, because of a lifestyle, because of unawareness, because of, when they get into this marriage, say they don't do open discussions, about their, you can say lifestyle, the way they are, about their family backgrounds, atmosphere in a home, culture or a value system. Because it is like so superficial कि उनको लगता है यार अब हमारी शादी हो रही है तो हम ऐसे ऐसे करेंगे और इस तरह से हमको देखा जाएगा. तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो वो लेने से घबरा रहे हैं, वो इसीलिए घबरा रहे हैं कि इनके बीच में ओपन डिस्कशन और कॉन्वर्जेशन एक दूसरे के माहौल को, सिस्टम्स को या फैमिली बैकग्राउंड्स को लेकर के वो ठीक से कर नहीं रहे हैं. दिस इज लाइक वन ऑफ द आई पर्सनली फील कि जो हम बोलते थे कि शादी एक पवित्र बंधन है, वो आज के डेट में नहीं रहा है. लोगों को शादी एक मजाक समझते हैं, या वो समझते हैं कि ठीक है नहीं चली तो डिवोर्स ले लेंगे. उनका पहले से माइंडसेट ही यही है कि शादी नहीं चलेगी तो डिवोर्स ले लेंगे. तो पहले क्या होता था, जब शादी को मानते थे कि शादी एक पवित्र बंधन है, उसको हमें निभाना है. बट आजकल की जो जनरेशन है, आई विल से कि दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट टेकिंग कमिटमेंट्स, और उसको करने के लिए उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो उससे घबराते हैं. तो हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस. कोई शादी करने से पहले ही अगर ये माइंडसेट में है कि अगर शादी नहीं चली तो डिवोर्स ले ही लेंगे, then how is that marriage going to work? And Yes. in that case, what are the options left? How can one देखो, save तो a failing जब marriage? कोई शादी के लिए आता है तो वो कभी नहीं सोचता है कि हमारे को डिवोर्स फेस करना पड़ेगा या हम ऐसी सिचुएशन में कभी एंटर करेंगे. Okay. तो हमें जो है उसके कारण समझना पड़ता है.
कि जब कोई मतलब कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ कितनी बॉन्डिंग है, कितनी ओपन डिस्कशन है, बच्चे जो अपनी लाइफ में जिस तरह से चाहते हैं, तो क्या वो क्लियर है अबाउट देयर लाइफ पार्टनर, अबाउट देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पार्टनर, इन देयर रूटीन्स, इन देयर हैबिट्स। तो जब ये सब चीज़ें डिस्कशंस में आती हैं बहुत ओपनली विद द अदर पार्टनर एंड विद इन द फैमिली, तब आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज वो कहते हैं नहीं नहीं यार, मतलब हम कर लेंगे, हो जाएगा, हम समझा लेंगे, वो समझ जाएगा। तो ये जो गैप्स रह जाते हैं बीच में, जब आप शादी से पहले, जब आप मतलब एक हमें कोर्टशिप पीरियड मिलता है समझने के लिए एक दूसरे को, अगर वहाँ वो गैप्स रह जाते हैं तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं ट्रिगर करने लगते हैं, और उसमें पेरेंट्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। So, do you people give this advice to the parents when they come to you? If say, for example, a parent has come to you and they are very skeptical ki, oh, we don't want our child's marriage to end in divorce. So they are already coming with that fear and they're already coming with that kind of mindset. Yes. So how do you tackle it? अब जैसे एक पेरेंट्स आते हैं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अब पेरेंट्स आते हैं जी, अच्छा आपको बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है कि बिटिया जो हमारे घर में आए, वो कहते हैं जी वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। तो हम उनको बोलते हैं कि आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो भाई। आप अगर उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो आप उनको स्पेस दोगे, आप उनके साथ, तो वही चीज़ तो आपको रेसिप्रोकल होके मिलेगी। तो जो इस चीज़ का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से शुरू हो जाती है, एंड दैट हैज़ टू बी वेरी रीजनेबल। मतलब if any new member entering in your family, from altogether different backgrounds, so she has to adjust, and as well as you have to adjust a lot with her. हाँ, क्योंकि जब बच्चे भी हमारे पास आते हैं तो वो आके उनके दो ही बात होती है करने के लिए। वन, वो कहेंगे कि मुझे अपनी शादी अपने पेरेंट्स जैसी शादी नहीं चाहिए। Okay. Because I've seen my mother is not happy in that marriage, या my father is not happy in that marriage, but वो उसको चला रहे हैं, मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। और समटाइम्स वो कहते हैं कि सेकंड की ऐसी मैरिज से तो अच्छा है कि मैं डिवोर्स ले लेता। Exactly. Why get married at all? And you know what? So sorry to cut you in between. Another data and another number that I want to tell people is that there is a study by Morgan Stanley that says that by 2030, 45% of women globally will be unmarried, will be single, and will be childless. I have the answer. Yeah. Because of the financial independence. Yes. The day by day, we're talking about feminism, we're talking about a lot of women should know her rights. Yeah. She should be independent. Yes, but how do you think all of this combined, and of course these numbers combined, affect the idea of marriage as an institution? Is it depleting now? If someone is coming to you with the question that why get married at all, then there's no point of So शादी तो देखो कोई आपका एक बहुत सुंदर बंधन है जो कि दो एक मेल और फीमेल के बीच में रहता है, दो परिवारों के बीच में भी रहता है। संसार चलता भी ऐसे है। सो इट इज़ समथिंग लाइक आप जब शादी के बंधन में जाते हो तो सबसे पहले तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हो, उसमें एंटर होना चाहते हो, तभी आप इस शादी के लिए तैयार होते हो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो तो ये शादी कभी होगी ही नहीं, एंड यू विल एंड अप विद लॉट ऑफ न्यूसेंस। और जहाँ तक आप कुछ कह रहे थे, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। नहीं बोलो प्लीज। मैं इसमें बिकॉज ना जो आपने बताया कि एज पर मॉर्गन स्टैनले कि आफ्टर 5 years कि हमारे पास 45% लेडीज जो वुमेन्स हैं दैट वुड बी चाइल्डलेस, अनमैरिड, उसके पीछे देयर इज ए फोमो, दे हैव fear of missing out. कि जब वो रिश्ता देख रहे होते हैं तो दे ऑलवेज हैव थॉट प्रोसेस इन माइंड कि मेरा डिवोर्स ना हो तो मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हर चीज के अंदर उनके पास एक ये फोमो आएगा कि शायद मुझे इससे बेटर मिल जाए। I wanted to ask you this, exactly this was my next question and I'll tell you why. Because we पहले जब इंडिया में ये डेटिंग ऐप से पहले
we had your Shaadi.com, we had your Jeevansathi.com, all of these things. Okay. Then the dating apps came in, and all sorts of dating apps we have. Yes. So nowadays, people, they are on a soul-seeking mode because they are always looking at options. Ki, what if I may find something better? What if I Yes. may find तो something वो better? find something better के लिए and they have like find of missing out कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है इसके अंदर, शायद मुझे नेक्स्ट बेटर मिल जाएगा. तो ये जितनी भी हमारी डेटिंग एप्स है, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, या बिकॉज हमारे पास प्रपोजल्स आते रहते हैं तो हमें इससे बेटर मिले, इससे बेटर मिले, ये करते करते वो अच्छे रिश्ते हाथ से खो भी देते हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है, आपके पास एक रिश्ता आया, वो कहेंगे जी मेरे पास तो इसका रिश्ता आया, तो उनको लगता है कि शायद मुझे और बेटर मिल सकता है. अरे भैया, आपके पास उसका प्रपोजल आने से ये नहीं है कि दैट पर्सन हैज अप्रोच्ड यू. हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि लोगों को लगता है शायद उसको पता भी नहीं कि मेरा प्रोफाइल गया है नहीं गया. बट आपके माइंड में वो थॉट प्रोसेस, आप खुद हैं, आप खुद एक नॉर्मल ग्रेजुएट है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे तो बीवी डॉक्टर मिल जाए. आपने ये नहीं सोचा कि भैया मैं तो पास भी बड़ी मुश्किल से हुआ हूँ, हाउ आई कैन गेट डॉक्टर वाइफ. बट आप अपने माइंड में वो फ्रेम बना के रख लेते हो कि मुझे तो ये चाहिए. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो कि व्हाट यू आर, और आपको जो मिला है वो आपसे 10 गुना बेटर है. बट नहीं, आपके मन में एक परसेप्शन बन गई थी कि मेरी वाइफ डॉक्टर होनी चाहिए, या मेरी वाइफ ऐसी प्रोफेशनल होनी चाहिए, या मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए. और जब वो चीज आपको नहीं मिलती, आपने शादी तो कर ली, बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस रहा कि यार मुझे लाइफ में ये चाहिए था. आपको जब कुछ नहीं मिल रहा, आपको लगा चल यार मेरी शादी हो रही है, अब तो मैं कर लेता हूँ. कि लेकिन आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, आपको उस चीज की कदर नहीं हुई जो चीज आपको मिली. आप दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे तो ऐसी वाइफ चाहिए थी, या मुझे ऐसी वाइफ चाहिए थी. आप माइंड में वही चीज लेके आप कंपैरिजन करते जा रहे हो. It's like I'm settling for this much, Yes. but I could have done better. Yes. I could have done. हाँ, तो जब आप यही सोचोगे कि मुझे शायद, तो बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो. तो हम लाइफ में ना जो हमें मिलता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते है ना. जो मिला है, भगवान ने दिया है, अगर हम उसकी कदर करना शुरू कर दें और उसके जो मिला है उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, तो शायद डिवोर्स रेट कम हो जाएगा. क्योंकि हम सबसे पहले ना इंसान की कमी को ही देखते हैं. ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कि कोई 16 कला संपूर्ण तो होगा नहीं, सबके अंदर प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे. तो हम प्लस को छोड़ के ना माइनस की तरफ भागते हैं. पता है, मैं आप दोनों की बातें जब भी सुनती हूँ ना, सो आई ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग कि जैसे हाउ पीपल डिमांड दीज डेज दैट वी शुड हैव सेक्स एजुकेशन इन आवर करिकुलम. We should also have these kind of education in our curriculum. At least in college, there should be a class, maybe not on marriage, but about life and companionship and the counseling. Yeah, and things it should that be there. matter in general. आज भी हमारे यहाँ पर इंडिया में लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो सबसे पहले पेरेंट्स का रिएक्शन क्या आता है, क्या मेरा बच्चा पागल है? Right. आपने मेरे बच्चे को पागल प्रूव कर दिया कि उसे साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, या अगर उसको काउंसलर के पास जाना है तो व्हाई दे नीड काउंसलर. आई थिंक दैट शुड बी देयर. बिकॉज आई जस्ट नरेट ए स्मॉल इंसिडेंट कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ की किसी छोटी बात पे लड़ाई हो गई कि मैंने ये चीज यहाँ रख दी, और वो बात इतनी बढ़ गई कि डिवोर्स तक चली गई. Really? तो देन दे कंसल्टेड ए काउंसलर. जब वो काउंसलर के पास गए तो काउंसलर ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, गर्ल से अलग पूछे, बॉय से अलग पूछे. देन काउंसलर कम टू द पॉइंट कि प्रॉब्लम ये सिचुएशन नहीं है कि उसने ये चीज यहाँ से उठा के क्यों रखी. प्रॉब्लम ये है जो आपने लाइफ में पहले इशू को रिजॉल्व नहीं करा. बिकॉज क्या होता है, समटाइम्स अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, इफ योर वाइफ इज डिमांडिंग समथिंग और आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो कि चल यार अभी गुस्सा है, लड़ रही है, छोड़ना, अपने आप चुप हो जाएगी या अपने आप शांत हो जाएगी, तो आप उस चीज को लेट गो कर देते हो. तो वो सिचुएशन तो लेट गो होगी और आपको लगता है कि यार मैं नहीं बोला, मैं चुप रहा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बट वो ग्रज उसके अंदर रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो आपके साथ Pent up. होती रहेगी, और कहीं ना कहीं वो मे बी वो आपके साथ रह रही है, बट कहीं ना कहीं उसके मन से वो डिस्कनेक्ट आता जाएगा. और जब वो एक दिन किसी उस छोटी सी बात के ऊपर ब्लास्ट करेगी, तो देन वो कहे कि ये जो है ना,
छोटी सी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। बहुत बार हमारे पास डिवोर्स केसेस आते हैं, उनसे पूछो जी क्या रीजन रहा, तो बोलते हैं जी बस इतनी सी बात पे डिवोर्स हो गया। वो इतनी सी बात पे डिवोर्स नहीं होता है, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको आपने नजरअंदाज किया होता है। बिकॉज जब अगर आप हर बात को, हर ग्रजेस को अगर आप क्लियर कर दोगे तो वहां पर आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसके लिए कम्युनिकेशन इज अ की फैक्टर फॉर दैट, बिकॉज हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। एक दूसरे से मन में फेयर रहता है कि मैं इसको बोलूंगा ये मेरे पे चिल्ला देगा या मेरे ऊपर चिल्ला देगी, हमारी लड़ाई और बढ़ जाएगी, बेटर टू कीप क्वाइट। आपको लगता है कि वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गई, या समटाइम्स सुना होगा आपने, बॉयज की बहुत आदत होती है, वो बोलते हैं कि लड़कियां पीछे की बातों को खींचती रहती हैं। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि आपने उन पीछे वाली बातों को रिजॉल्व नहीं करा है। आई गेट दैट अ लॉट। ये तो बात बहुत खींचती है। हाँ, ये बहुत बात खींचती है। आज टॉपिक ये चल रहा है तो पुरानी बात क्यों लेके बैठ गई है? Every man will say कि पुरानी बात क्यों लेके बैठ जाइए। People are doing stand-up comedy on this entire thing. पूरा सेट निकाल दे रहे हैं। तो वो क्या होता है, बिकॉज वो इसलिए उस पुरानी बात को लेके बैठी है क्योंकि आपने उस पुरानी बात को अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। अगर वो चीज आपने रिजॉल्व कर दी होती तो शायद वो बात वो नहीं लेती। तो वो जो हमारा है कि अगर हमारे बीच में कोई भी, आई वॉन्ट टू एडवाइस एवरी कपल, एवरी इंडिविजुअल, कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी बात को लेकर ग्रज है या कुछ भी चल रहा है तो बेटर sit with them, communicate each other, और उस चीज को वहीं पर रिजॉल्व किया जाए। Right. You know, a beautiful point that comes out of this, and I think we should also discuss this, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इंडिया में ये चीज किस लेवल पे और कितना हो रहा है, which is marriage counseling, which is very common in the West, by the way. I mean, given the divorce rates there, which is almost like 45-50%. So, you think India में we should, create more and more awareness about marriage counseling in general? We have to. Is it good to seek? It is very good. अभी भी हमारे पास जब लोग रिश्तों के लिए आते हैं, we counsel them a lot. मदर को, फादर को, मदर को, फादर को, बच्चों को, क्योंकि सबके अपने सवाल होते हैं। Right. और सबको अपने लिए कुछ कुछ चाहिए उस शादी में से। So we understand, their goals, what they want to achieve, like from arranged marriage. Right. And then we try to counsel them and make them settle on that. अब एक सबसे बड़ा फेयर क्या होता है डिवोर्स में, जब हम किसी में भी कहते हैं, लड़की को लगता है कि मतलब किसी भी गर्ल को कि ये मेरी सुनता नहीं है, और बॉय को लगता है कि मेरे ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं है, और वो होता है ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। अगर वो ज़्यादा एक दूसरे को समझना और सुनना शुरू कर दें तो शायद ये इश्यूज भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने लगे। Over 1,000 marriages you guys have done, how many have ended in divorce? Like real numbers. Roughly 2 or 3 marriages. 2 or 3 marriages. And उसके अंदर भी क्या है, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस करा कि एक एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट था कि बॉय वाज हैविंग ड्रग्स, तो उसके अंदर क्या है कि हमारा there is no fault of us. There no fault in yes. yours. तो ऐसे ही हमारे आज तक के करियर में in this 16 years of span we got 3-4 divorces, और उसके लिए हम पहले से पता था कि ये मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होगी। हाँ, ये तो आपने पिछली बार भी बताया था that you knew it was a mismatch. Yes. And even we advised the professional family is a lawyer. Yes. Achha, so when they are, I mean, at the brink of ending their marriage and, just like getting a divorce, do they come back to you again? Yes. Yeah, because, all those families, What are the reasons they tell you? जो भी 3-4 शादियां रही हैं, क्या reasons रहे हैं उसमें divorce के? सबके अलग होते हैं। Actually हमारे पास तो वो केसेस भी आते हैं जो कहीं और से, या वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी या किसी रिश्तेदार ने करवाई थी, और दे एंड अप विद द डिवोर्स। Right. और फिर उनके जो रीजंस अगर हम मतलब सुनते हैं तो वो बहुत अलग होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। Okay. एंड और अभी तो डिवोर्स का ऐसे होने लगा कि देयर इज नो एज, इट इज एन एक्सीडेंट व्हिच कैन हैपन टू एनीबॉडी एट एनी एज ग्रुप। Right. हाँ, लोग शादी के 16 साल के बाद, 17 साल के बाद, 20 इयर्स के बाद भी पीपल आर हैविंग डिवोर्सेस। अपने बच्चों के लिए भी रिश्ता देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने लिए भी देख रहे हैं। But that also says a lot about, this increasing self-awareness in our society, that if they feel now that, okay, I have had 16 years of this relationship and I cannot give any more into it.
So they decide to get a divorce and then they decide to remarry. What are the challenges that happens then? You know, for a divorcee to get remarried in our country, have things improved when you speak of those things? इसके ना दो there are different parameters on this. As per me, I'll say कि अगर कोई डिवोर्स लेता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारे वुमेन्स एम्पावर कर रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं, दिस इज़ वेरी गुड थिंग. बट इसके साथ साथ ना जब आप डिवोर्स ले रहे हो उसके पीछे के रीजंस को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो तो यू शुड गिव ए चांस, बिकॉज कई बार आप ईगो में आकर उस चीज को बिल्कुल खत्म कर देते हो. अब सपोज आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड, एंड उसका और उसके हस्बैंड के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा आ गया, एंड शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि ना शालू आई नीड योर हेल्प, मुझे पुलिस के पास जाना है और मुझे अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन करनी है, विल यू हेल्प मी आउट? आई टोल्ड वेट, मुझे पहले स्टोरी बता. व्हेन आई हर्ड द स्टोरी तो मुझे लगा कि हाँ, बिकॉज आप चिल्ला रहे हो, आपका हस्बैंड चिल्ला रहा है, गुस्से में किसी का हाथ लग गया. बिकॉज जब आप एंगर में होते हो या जब आप गुस्से में होते हो, आप क्या कर रहे होते हो आपको पता ही नहीं होता. देन आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, मैंने कहा वुड यू लाइक टू टेक डिवोर्स? शी सेड नो. मैंने कहा देन व्हाई यू वांट टू गो टू पुलिस? कह रही मुझे उसको सबक सिखाना है कि ही कांट हिट मी. मैंने कहा वो जो स्टोरी आप मुझे बता रहे हो वो एक गुस्से में स्टोरी है, और गुस्से में किसी का भी हाथ उठ जाता है, इसका मतलब इंटेंशंस नहीं है. अगर तुझे डिवोर्स नहीं लेना है तो देन गो फॉर द सॉल्यूशंस ना. आप तो इससे अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो. जस्ट इन्वॉल्व योर फैमिली. के लिए नहीं, मैं मेरी फैमिली को क्या इन्वॉल्व करूं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ हमेशा अपने बेटे की साइड लेते हैं, जो एक हर गर्ल को लगता है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कुछ बोलते नहीं है, तो मुझे कुछ करना है. तो आई सेड सॉरी, मैं इसमें तेरा साथ नहीं दूंगी, बिकॉज इन माई ओपिनियन यू आर रॉन्ग है. या तो तुम्हें डिवोर्स लेना है, देन यू गो फॉर दैट काइंड ऑफ साइड. अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, देन यू थिंक कि कैसे हम अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाएं. बिकॉज ये जो तुम हरकतें कर रहे हो कि आज पुलिस को बुला लोगे, मुझे सबक सिखाना है, तो इससे तो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे ना पहले. बिकॉज बहुत सारे लोगों को होता ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या. अगर आपको साथ रहना है तो फोकस ऑन कि कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाए. तो देन मैंने उसको बोला अभी तू गुस्से में है, हम 2 दिन के बाद डिस्कस करेंगे. बिकॉज आपको, मुझे लगता है कि जब भी आप कभी गुस्से में हो या जब भी कभी आपको हो, तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू बी कीप क्वाइट ऑन दैट पार्ट. 2 दिन के बाद हम मिले, हम बैठे, मैंने उसको प्यार से समझाया. मैंने कहा इफ यू डोंट वांट डिवोर्स देन फोकस ऑन कि कैसे रिलेशन ठीक हो सकता है. शी सेड कुछ नहीं हो सकता मेरे हस्बैंड का. मैंने कहा फिर देन टेक ए डिवोर्स. शी सेड नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं डिवोर्स नहीं ले सकती. तो मैंने कहा देन पहले तो यू डिसाइड कि व्हाट यू वांट. देन शी आस्क्ड कि ठीक है, कह रही चलो तू मुझे बता, जो बोलेगी मैं वो करूंगी, बट मेरा हस्बैंड ठीक नहीं होगा. मैंने कहा ओके, पहले तो फोकस रख कि मेरा हस्बैंड ठीक होगा. बिकॉज अगर आप किसी चीज की शुरुआत ही एक उससे कर रहे हो, माइंडसेट से कि इसमें तो ठीक होना ही नहीं है, तो वो ठीक होगा भी नहीं. मैंने कहा आज सोच कि आज मैं जो करने जा रही हूँ इससे मेरा हस्बैंड भी ठीक होगा, मेरे इन लॉज भी ठीक होंगे. देन आई सजेस्टेड 2-3 थिंग्स कि मैंने कहा ठीक है, तू प्यार से बोल, वो गुस्सा कर रहा है करने दे, एंड वो जो चाहता है पहले तो ढूंढना कि क्या चीज उसे तेरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है और क्या चीज तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसके ओर. बिकॉज जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे, वन पार्टनर हैज टू टेक द स्टैंड फॉर दैट ना. अगर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने शादी करी है, एक दूसरे का साथ निभाने की, कहते हैं ना 7 जन्म का रिश्ता है, कसम खाई है, तो उसको निभाओ. अगर आपका पार्टनर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो. सबक सिखाना तो एक राइट वे शुड बी देयर. उसके बाद यही हुआ कि उसने किया एंड नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड. एंड वाज दिस एन अरेंज्ड मैरिज? That was an arrangement. This was an arranged marriage. Because I want to ask you 2 things. So the first thing is that see, arranged marriages, people believe that do not end up in divorce easily, because as we say in a country, 2 families are involved. नहीं, ऐसा नहीं है. और 2 परिवारों का रिश्ता हो रहा है. So you know, both the sides they give it all in. Actually, love marriage में क्या होता है? You know a person like maybe like from in 6 months, year, 2 year, 5 years. तो you are in a relationship. तो आप उसको सब समझ चुके होते हो. Right. And then you enter into love marriage. फिर शादी के बाद जब वैसी चीज़ें नहीं करता बॉयफ्रेंड, जो कि अब हस्बैंड है, तो वहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं. वो गर्ल को भी लगता है और बॉय को भी फील होता है
एकदम से चेंज हो जाता है ना सब कुछ. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अरेंज मैरिज, तो स्कोप ऑफ अरेंज मैरिज ज़्यादा चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि दो अनजान लोग अभी अभी मिलते हैं, 1-2 महीने में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट्स लेवल बहुत हाई होते हैं, सो दे बोथ ट्राई टू वर्क आउट ऑन एवरी सिचुएशन की उनको कंफर्टेबल फील करें. बट और हाँ, पेरेंट्स भी करते हैं. बट आई हैव सीन मैनी फेलियर्स इन लव मैरिजेस ऑल्सो. हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, 10 साल का अफेयर, 15 साल का अफेयर, शादी होके 6 मंथ्स में डिवोर्स. हाँ, ऐसा भी होता है. बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं. अभी रिसेंटली बिकॉज नाउ आई हैव स्टार्टेड काउंसलिंग ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के, बिकॉज बीइंग इनटू दिस थिंग प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है. तो अभी लेटेस्ट मेरे पास एक वन गर्ल केम टू मी, शी हैड 10 years ऑफ अफेयर. Okay. गर्ल की फैमिली मानी नहीं, दोनों ने भाग के शादी करी मंदिर में कि ताकि फैमिली एक्सेप्ट कर ले. और आज बॉय हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बॉय को गर्ल की शक्ल देखना पसंद नहीं है एंड ही वांट्स टू गेट डिवोर्स. तो उसकी फैमिली वाले बोलते हैं जब हमने मना किया था कि शादी नहीं करनी, तब तो तुम माने नहीं मेरी बात, तुमने भाग के शादी कर ली. अब जब शादी हो गया, यू हैव ए बॉय, ही हैज ए किड, नाउ यू आर सेइंग कि हमें डिवोर्स लेना है, एक दूसरी शक्ल नहीं देखनी, तो अब तो हम डिवोर्स होने नहीं देंगे. Now the family does not want them to get यस, divorced. बिकॉज वो कहते हैं कि अब बच्चे की लाइफ के बारे में सोचो. Hmm. तो कई बार ऐसा होता है कि आपने 9-10 years किसी को इतना जाना, इतना किया, तो मुझे लगता है पर्सनली कि हर रिलेशनशिप में एक स्पेस होना चाहिए. मतलब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि आप अपना पूरा प्यार किसी को दे दो और सामने वाला उस चीज की रिस्पेक्ट कदर करेगा, वैसी दुनिया नहीं है अब. तो आपको कहीं ना कहीं एक स्पेस देना चाहिए. और दूसरा, आपको जो है, यू हैव टू बी लाइक कमिटेड टू समवन, कि अगर आपने किसी को अपनाया है तो यू शुड बी लाइक, आई विल से कि उस चीज को प्रॉपर फॉलो करो. कोई गलती भी है तो उसको सिखाओ या दोनों कम्युनिकेट करो, बिकॉज आई थिंक इन रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इज द मेजर की. Okay. अच्छा, आप लोग को करीबन 16 साल हो गए हैं in the matchmaking हम्म. business, right? So, this number, this 1%, जो कि हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ये आपको लगता है ये 1% जो है ये बहुत पहले हो जाता, लेकिन हमारे देश में जैसे कि आपने बोला कि think about the kid, which is why so many people who could have gone divorce, who could have gotten a divorce in the past, they did not, only for the sake of their kids. So Yes. this is something that sets our country apart. यस, ये तो है, That way. ये तो है. बहुत सारे लोग, और मुझे लगता है कि आई पर्सनली फील कि एक लेवल तक सोचना भी चाहिए, बिकॉज जो बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, आई हैव सीन, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं या जिनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है. उन बच्चों के लिए जो हम रिश्ता देख रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इज नॉट एज गुड एट इट कैन बी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो मैरिज का फियर है. तो बट क्या है ना कि फिर वो भी बात है कि कोई भी लड़का लड़की अगर उनको मैरिज चल ही नहीं रही है, तो वो अपने बच्चों के साथ रह के भी क्या करेंगे. तो इसमें दोनों चीजें हैं. एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, कि क्या है, कैसे है. बट यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. समझना पड़ेगा उसकी सिचुएशन को, Right. ये किस लिए है. अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपने बोला कि एक मॉर्गन स्टैनली की देयर इज लाइक वन केस स्टडी कि Yeah, आप I think it's a study हाँ. wherein they collected They said- samples globally, and this is अब this is a 45% इसका- they have put. There are other things also. मैं बताता हूँ है क्या, कि देखो आज से 40-50 साल पहले दुनिया कुछ और थी, Right. आज कुछ और है. जो 20 साल पहले पेरेंट्स थे, 25 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी, आज जनरेशन बहुत अलग है. मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई किसी एरिया की कोई नई साइट डेवलप हो रही होती है तो बहुत मॉडर्न होती है, ऐसी जनरेशन है ना. तो उसमें अब क्या है कि देयर आर hundreds of opportunity like for a girl and a boy and a women. Someone is active, studied well, doing very good in her career. तो उसको कहीं ना कहीं एक ईगो भी आ जाती है दोनों को. मतलब मैं स्पेशली जैसे कि अगर आज मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, तो शादी को मैं अभी बाद में देख सकती हूँ. ऐसे करते वो एज निकलती है
और जब एज निकलती है व्हेन यू लुक लाइक फॉर अ मैरिज, तो कई बार ऐसी जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के बॉयज, जो लड़कियों को लगता है, गर्ल्स को लगता है कि मेरा हस्बैंड, आई शुड लुक ऑन हिम, ही शुड बी सो एंड सो, वो चीज़ नहीं मिलती है। और फिर अगर मिल भी जाती है तो शी हैज़ टू लो डाउन, यू बोथ हैव टू लो डाउन देयर ईगो, मेल एंड फीमेल बोथ। और कई बार गर्ल्स को ऐसा भी लगता है कि यार कि जब मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, अच्छा नाम है मेरा, अच्छा करियर है मेरा, सो डू आई रियली नीड अ मैन इन माई लाइफ। तो फिर उनको ये मतलब पता होना चाहिए कि ठीक है, करियर के साथ साथ हम दोनों इंसान बहुत अलग है, दोनों को एक दूसरे की हर सिचुएशन में ज़रूरत है। तो शी शुड रिस्पेक्ट एज हर हस्बैंड, कि उसको ये कभी फील ना आए कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ तो कुछ कमाता ही नहीं है, या ये तो मुझसे कम कमा रहा है। So mutual respect should be there between boy and a girl, although they must be progressive enough in their own career or in life, Right. and they should treat wife, as a human being, and she should also treat as a husband, a very important factor of her life, where they both are depending emotionally on each other for Right. various other support. Both of you, I started off with asking you कि पेरेंट्स पहले से फियर लेके आते हैं कि नहीं डिवोर्स का, जो कि आपने बोला कि हाँ, पेरेंट्स डू हैव द फियर ऑफ डिवोर्स दीज डेज एंड दे अप्रोच यू विद दैट फियर ओनली कि बच्चों की शादियां चलेगी कि नहीं कराने से पहले। बट एट द सेम टाइम आर पेरेंट्स ऑल्सो एक्सेप्टिंग ऑफ डिवोर्स दीज डेज? या ठीक है, अगर शादी नहीं चली, वी डोंट वांट टू सी आवर किड्स सफर, let them get a divorce, which was not the case earlier. या ये है। और अभी रिसेंटली वी वर सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स, और उसमें हमारे एक फ्रेंड की डॉटर, शी इज़ लाइक 20 प्लस, एंड शी वाज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट करियर एंड एवरीथिंग। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि आफ्टर 3-4 years यू शुड स्टार्ट लुकिंग ए मैच फॉर हर ऑल्सो। शी सेड कि यार शादियां तो चलती ही कहाँ हैं आजकल, लेट हर फोकस ऑन हर एजुकेशन फर्स्ट, 30-32 साल के बाद देखेंगे। तो आई टोल्ड हर कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एज ए पेरेंट्स इट्स आवर ड्यूटी टू एजुकेट अबाउट मैरिज ऑल्सो, कि शादी कैसे चलानी है। अगर आज हम उसकी करियर के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ हर लाइफ। तो अगर आप ही बच्चे को ये बात बोलेंगे कि भैया शादी को छोड़, just focus on your career. Of course, career is also important, but this is also important part of life, because हमारे पास इतने सारे girls आती हैं, इतने सारे boys आते हैं who have crossed the age of 35-40. Now they are going into depression. उनकी mental health खराब हो रही है because they are just focusing on their work and work. आप work किसके लिए कर रहे हो? For a better life. For a better life, तो better life के लिए always need a partner for that. तो कई बार हम लोग उस चीज़ को सोचते नहीं है, और जब वो एज निकल जाती है, वो टाइम निकल जाता है, तब हम सोच रहे हैं कि हमें शादी करनी है, उसके बारे में सोचना है। तब आपकी जब बिकॉज जितनी शादियां 40s में होती हैं, 35 के बाद होती हैं, उसमें से मैक्सिमम मैरिजेस आर कन्वर्टिंग इनटू डिवोर्सेस। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज आज के डेट में एज इज वेरी लेस। 40 के बाद हर एक को फिजिकल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। लेडीज आर like facing problems in conceiving, giving birth to child, तो वो frustration आती है कहीं ना कहीं। मेंस हैं वो अपना, बिकॉज इतना हमारे यहाँ पर आजकल कैरियर को लेकर इतना कंपटीशन है, दे आर बिजी इनटू दिस थिंग, उनके पास अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल है, तो वो मैरिज को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, और उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो आपकी मैरिज, आपकी शादी, आपका पार्टनर शुड ऑल्सो बी ए प्रायोरिटी लाइक कैरियर। They both should be the same aspect of life, because आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तभी आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। Right. Correct. आपने of course you mentioned that 1000 में से 3-4 ही ऐसी शादियां होंगी जो that have ended in divorce, and which you already knew about that. Okay, this was a mismatch. But without taking any names, could you also tell us stories of people who you got together and who after getting married had problems in their marriage, who came to you but they worked out on their differences, and then they're still making their marriage work? Can you There are tell some couple of stories? them. We have counseled them a lot.
और वो सिचुएशंस कुछ नहीं थी। मैंने बताया जैसे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। Right. जब शादी होती है बहुत बड़ा रोल होता है कि जब वो क्योंकि मतलब जब दो, ये छोटे ही तो हैं जिनकी शादी हुई है 25-30, पेरेंट्स तो फिर भी 45-50 के एज में होंगे। सो उस समय उन दोनों को स्पेस देनी चाहिए। बच्चों को छोटे छोटे इश्यूज को बढ़ने नहीं देना चाहिए। उनको बैठ करके लाइफ के बारे में, कैसे जीवन हर रोज चलता है उसके बारे में उनको काउंसल करना चाहिए। वहाँ पर जब वो पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ हो जाते हैं, इश्यूज आ जाती हैं, बजाय मतलब इन दोनों को बिठा करके समझाने के। And what are these issues? Are they about financial independence? Are they about independence in general? Or are they about something like we've seen the movie Mrs. released it now, Yeah. has caused a Oh. stir on social My media. So what is happening there? If you Sorry talk to about interrupt. These issues. हाँ, if you talk about this Mrs., तो मुझे लगता है कि Do talk about it. Do tell me your opinion. हाँ, What do you think about तो the मुझे लगता है देखो, ऐसे एडुकेटेड फैमिली जहाँ पर हो, देखो सुख साधन तो सब कुछ है। अगर आप सक्षम हो तो आपको अपनी हाउस हेल्प ज़रूर रखनी चाहिए। और मतलब ऐसे पढ़े लिखे घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। I would like to narrate one story. Abhi you were asking me. I am just remembering. Recently, one of my friend, and she was married for last 15-16 years, and she had 2 kids, and she was fully devoted to her husband, and कि जो कुछ है बस वही है. She forgets her parents, her friends, जो हस्बैंड को पसंद है वही करना है. एंड शी was always in this thing कि I had the best marriage. right? ठीक है, थोड़ा बहुत सब में चलता है, थोड़े बहुत इशू सब में होते हैं. एंड देन शी केम टू नो कि उसके हस्बैंड, someone told कि your husband is having an affair from last 6-7 years. She got shocked कि ऐसा तो हो नहीं सकता. तो then she found out this is the truth. And then उसकी पूरी life changed. Yeah, of course. And then she discussed with me and she was fully broken कि अब मैं क्या करूँ? I can't even imagine the trauma that people go like that. If someone is making someone their world for over 16 years and then they find out such a thing, of course they'll be. तो उसके लिए उसकी Shatter. पूरी जिंदगी शैटर हो गई थी. Yeah. And she was like कि मैंने जिस इंसान को अपना सब कुछ दिया, what that person has given to me and I have kids, मैं क्या करूँ? She came to me कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. तो of course इस चीज का डिसीजन लेना it was not easy for me also. Then I asked her कि try to find out the reason behind it. And there are so many things associated, but ये है कि and then I discussed with her husband also and उनसे भी find out करा. तो because क्या होता है ना, आप कई बारी किसी चीज़ को लेके आपको ऐसा realize होता है कि जो आपने पहले बात करी कि sex education is also important part of the life, that should also be there, because कई बारी men's के लिए sex is very important part of life, but women के लिए कई बार उसके साथ बहुत सारी responsibility आ जाती है. एट जैसे जैसे शादी के टाइम आगे बढ़ता है, बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर किड्स ऑल्सो, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली ऑल्सो. इफ शी इज वर्किंग, शी इज इंडिपेंडेंट, तो शी हैज टू look after that things also. Women are like more burdened with responsibilities. Look over so many तो things. उसको लगता है कि यार इतना टाइम हो गया, इतना सब कुछ हो गया, या कभी उसने अपने हस्बैंड को if she is tired उसने मना कर दिया कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि she has no love for him. Right. या कभी उसने किसी बात पे उसको डांट दिया या कुछ कर दिया, नहीं हुआ. देन उससे बात उसको बोला गया कि अगर आपका हस्बैंड चेंज हो जाए, तो बिकॉज काउंसलिंग टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपके सामने बच्चे हैं, फैमिलीज हैं. बट हाँ, उसने बहुत ही कामली टाइम दिया उस चीज़ को, सोचा, फिर उसके हस्बैंड से भी डिस्कशन किया गया. एंड देन ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि हाँ मेरे से गलती हुई है, कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. जिस चीज़ को मैं प्यार समझ रहा था वो प्यार नहीं था, दैट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन. बिकॉज क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है. कई बार आप उस लय में बह जाते हो,
दैट शुड नॉट बी देयर. एक कमिटमेंट आपको एक मैन की तरफ से भी होना चाहिए कि हाँ, कि अगर मैंने किसी से शादी की है तो मैं उसके साथ हूँ. तो उसमें उनके बीच में जो मेजर प्रॉब्लम समझ में आई, वन वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकंड वाज लाइक कि एक फेयर हस्बैंड के मन में कि अगर मैं मेरी वाइफ को कोई बात बोलूंगा तो वो मुझे गुस्सा कर देगी, मैं कुछ बोलूंगा तो वो चिल्ला देगी. तो उसमें क्या है कि आपको उसको भी खुश रखना है. आपको कोई चीज बुरी लग रही है, आप उसके सामने उस चीज को अच्छा बोल रहे हो. आपने कभी उसको रियलाइज ही नहीं कराया कि मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं आ रही है. एंड सेम थिंग, और बाद में आपकी वही उसी चीज ने आपको ब्लास्ट करके गलत रास्ते पे ले गई. तो बेटर शुड बी द कम्युनिकेशन. बट हाँ, देन दे रियलाइज कि हाँ वो नहीं था, एंड नाउ दे आर कॉपिंग विद ईच अदर एंड थिंग्स आर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन. So one cannot basically list out the issues जिसकी वजह से problems हो रहे हैं या जिसकी वजह से divorce हो रहे हैं. बहुत सारी. It's plethora है, बिल्कुल बहुत बड़ा ईगो, pool है कभी issues ईगो का. आ जाती है. अब इस केस में अगर ईगो आ जाती या इस केस में अगर वो बिल्कुल छोड़ देती तो मैरिज कैन टर्न इनटू डिवोर्स. I agree. And again, I am going to circle back to that thing. Are parents accepting of divorce now? Like, Yes. they are. ऑफ कोर्स, यस, देखो पेरेंट्स नॉट उसके कारण एक्सेप्टिंग. क्या है, मैं आपको बताता हूँ. अब मान लीजिए कोई एक बहुत ही शांत स्वभाव का है Hmm. और सामने आप किसी फैमिली में चले जाते हो, बहुत ही लाउड है. Hmm. और उनका मतलब लाउड के साथ साथ कुछ हैबिट्स ऐसी हैं which is not acceptable to the girl, जैसे ओवर ड्रिंकिंग, बीटिंग, abusive languages, Some things, of course, you can which is not in your hand. different. यस, Then the parents must Take a try decision. to counsel them. If it is not, they are not able to handle situation, then divorce is must. Like, of course, the drug story that you Yes. mentioned, या which was completely. हाँ, मतलब जिन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं उसको हमें उसमें चेंज हमें करना change करना चाहिए. जी. और जिन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते कि हाँ किसी की हैबिट ही है, वो पर्सन है, उसका नेचर ही आपको बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा, तो देन आई पर्सनली फील कि वो आपको जो है परेशान होने से अच्छा है क्या. और ये इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाता है, साल 2 साल 3 साल में क्या होता है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत एडजस्ट करते हो, एक दूसरे के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करते हो मैरिज को चलाने के लिए, और फिर भी कहीं आपको लगता है कि लूजिंग योर आइडेंटिटी एंड साथ साथ में, तो फिर सिचुएशंस बहुत अलग हो जाती हैं. बट अगर आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हो, बट इन रिटर्न ऑफ दैट आई कैन से फिर गेटिंग लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली, and lot of other things which is like good for any of them, तो वो फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर बिल्कुल ही नहीं है then definitely आगे मूव करना चाहिए. And what about acceptance of remarriage of divorcees? How is that? वो थोड़ा और ज़्यादा based चैलेंजिंग on हो your जाता है. experience. वो और चैलेंजिंग हो जाता है. देखिए, जब कोई डिवोर्स लेकर आता है Hmm. तो वो बहुत ही अलग माइंड ऑफ फ्रेम में होता है. वो कहता है मुझे People perceive them from a certain lens Yeah. कि अच्छा इनमें कोई प्रॉब्लम होगा, that's why they are divorced. और देखिए, जब भी कोई डिवोर्स की बात करता है कोई तो कारण बनता है, और ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से तो बजती नहीं है. तो अब वो जैसे शालू ने अभी आपको बताया कि होता क्या है कि आप किसी चीज़ को या तो खींच दो या किसी चीज़ को आप संभाल लो. आप उसके पीछे के कारण जान के उसको एड्रेस कर लो, तो भी आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो. और अभी वो जो पीपल आर सो शॉर्ट टेम्पर, सो इगोइस्टिक that they do not even want to discuss or give it a thought ki how I can save my marriage, or Right. no. So they just want to move ahead because of that financial independence, or maybe you can say a support of a parents which is there. Having said all of that, this is my final question to the both of you. And both of you, please give your perspective. And Shaluji, you as well, since you recently started marriage counseling also. Given your experience in the matchmaking world and everything you've seen, from failed marriages to the, successful marriages to, what is the, like, how both of you put it, that communication is key to a good marriage. What do you think, putting all of this together, the future of marriage looks like in India? Are we moving towards an era where relationships are just going to be more flexible and there will be no need for marriages? Because now, speaking legally,
we are also recognizing living relationships now. So, in the Uniform Civil Code that is going to come in, most probably in the entire country. So, in Uttarakhand, the government is asking people to register their live-in relationships. So, say 50 years from now, you start registering your live-in relationships, and what's the point of a marriage certificate? You have a Ma'am, but still, marriage will definitely going to happen yeah. So in all I circumstances. I want like both the perspective. Do you think that marriage as an institution will never be affected? It will always be there, It but will always- it will only become flexible. But Yeah. flexible in what terms? फ्लेक्सिबल इन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बोथ टर्म्स. Okay. अगर हम पहले के अरेंज मैरिजेस की बात करें तो पहले के अरेंज मैरिजेस फैमिलीज द्वारा की जाती थी. पेरेंट्स ने जाके लड़की को चूज कर लिया एंड बोलते थे कि मेरे उस रिश्तेदार की है, मैंने उस खानदान में शादी कर ली, उस खानदान का बच्चा है. एंड इवन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शादी के बाद मिलते थे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे. Right. देन द टाइम चेंजेस, गर्ल बॉय ने मिलना शुरू किया, एक बार मिलवा दिया एंड पेरेंट्स ने सेड कि हाँ चलो देखने जाना है, वहां देख लिया, ओके कर दिया. थोड़ा टाइम और आगे आया, देन थोड़ा जो है बच्चों का मिलना जुलना ज्यादा शुरू हो गया. बट द नाउ द टाइम हैज चेंज्ड. अब बच्चों की अब अरेंज मैरिजेस में पेरेंट्स के प्लेटफॉर्म के साथ इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस दी जाती है. हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी पेरेंट्स भी आते हैं, वो पहले बोलते हैं कि नाउ दे अंडरस्टैंड द कंपैटिबिलिटी. If we are into this from last 16 years, but from last 4-5 years, now parents also understood what is compatibility. अब आज के डेट में आपको वो वाली चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी कि सास बहू का झगड़ा हो रहा है या सास ऐसा कर रही है. मुझे ना आपकी वो लाइन याद आ गई. आपने मेरे ख्याल से पहले एपिसोड में बोला था कि अरे हमें तो समझ ही नहीं आएगा कब बजेगी तुम्हारी घंटी. तो Oh, vibes नहीं मैच हो रही. Vibes Lot नहीं of match vibes. हो रही है, Vibes hype है. क्या तो Vibes. अब क्या है, अब वाला टाइम हैज चेंज. जब पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे से मिलो, आप मेरे बच्चे को समझो, Right. उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हमें मैच दो. आई थिंक हम लोग इस फील्ड के अंदर मी एंड सचिन राइज कर रहे हैं. इसके पीछे रीजन भी है, हम बच्चों के साथ उनके लेवल पर सोचकर, उनकी कंपैटिबिलिटी को देखकर. तो अब अरेंज मैरिज का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है कि आपको वो रिश्ता थ्रू पेरेंट्स या फैमिली दिखाया गया, बट जो आपका डिसीजन है वो इंडिविजुअल का डिसीजन होता है. इवन बहुत सारे पेरेंट्स हैव लाइक लेफ्ट कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना, फैमिली में पैसा है नहीं है, कुछ है नहीं है. बहुत सारी फैमिलीज हैव चेंज देयर माइंडसेट. नाउ दे आर मोर फोकस्ड ऑन कि मेरे बच्चे को जो पसंद है, मेरे बच्चे को जहाँ कंपैटिबिलिटी है, आई एम रेडी टू, बस ये दोनों खुश रहें, दिस इज माय पर्सनल रिक्वायरमेंट. Right. तो टाइम इज चेंजिंग. आगे भी अभी क्या है, बहुत सारे प्री नैप एग्रीमेंट इज क्वाइट कॉमन नाउअडेज. Oh yes, prenups. Yes. Yeah. This is a very Prenup. common phenomenon in the हाँ, West. अब But जो see, जो in India, still, it is like acceptability is very Only less. in the rich families also. I mean, It is happening. Where? Even like we are going to Now arrange one marriage. really. So where this prenup has already been discussed. I have never heard of this. Yeah. So we have, and they are about to sign this. In because Really? हाँ, because हमारे जो and राइट्स this will also save lot of divorces. यस, Yeah. बिकॉज I'm telling you. लोग ना डिवोर्सेस के कोर्स को समझ के, जैसे बिकॉज आपने जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डिवोर्सेस के जो मेन रीजन आते हैं कि बॉय जो था इम्पोर्टेंट था या गर्ल को कुछ इश्यूज थे. तो नाउ पीपल आर लाइक वेरी मच अवेयर, दे आर ओके कि आपको कोई मेडिकल टेस्ट कराने हैं आप करा लो, सेक्स एजुकेशन है. इवन हमारे पास बहुत सारे हमने ऐसे रिश्ते कराए हैं जहाँ पेरेंट्स रिश्ता होने से पहले बच्चों को बोलते हैं गो एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर, 1 महीने का आप कोर्टशिप पीरियड एंजॉय करके आओ, रिश्ता करने से पहले इफ यू बोथ आर हैप्पी. नाउ टाइम इज चेंजिंग. तो जैसे जैसे हमारे डिवोर्स केसेस के जो लोगों के सामने रीजंस आते हैं तो पेरेंट्स उसके लिए रेडी भी हो गए हैं. इसलिए लोगों ने, जैसे कि गर्ल्स को लगता है या समटाइम्स पेरेंट्स फील्स कि कोई हमसे पैसे के लिए शादी तो नहीं कर रहा, एलुमनाई के लिए शादी, तो लोगों ने प्री नैप एग्रीमेंट्स, तो उसको लगता है कि यार गर्ल ने इस एग्रीमेंट के लिए येस कर दिया. अगर किसी के लिए डाउट आ रहा है, अभी रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ एंड वन फैमिली सेड कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो जस्ट ask them कि if I'll sign get the agreement signed, and that girl said yes, I have no issue. उनका रिश्ता हो गया. Self-dependent, I'm- self-independent. Really nice. हाँ,
तो उनका And रिश्ता हो then गया, that's किसी को for किसी a पे डाउट आता है कि भैया मुझे लग रहा है कि इस लड़के में प्रॉब्लम है, ये लड़का मुझे गे लग रहा है, कुछ लग रहा है या यही लग रहा है, तो हम क्लियरली बोलते हैं कि दे वांट टू गेट इट टेस्टेड, पेरेंट्स आर ओके। तो वो सब चीजें जो आ रही हैं हमारी सोसाइटीज में, ये डिवोर्स रेट को एक्सेप्टेंस, is And this is increasing. what the flexibility is. Yes. that सो पहले क्या होता था, including जब अरेंज मैरिज के लिए बच्चे या पेरेंट्स आते थे, उनको लगता था जैसे कोई नहीं कि तो मेरे माँ बाप मुझे देकर आ गए और ये तो जो लड़की दिखाएंगे मुझे वहाँ शादी करनी ही होगी। पर अभी हम जब वो हमारे साथ बैठते हैं तो सबसे पहले हम उनका ये फेयर ही दूर करते हैं कि देखो वी वांटेड व्हाट यू वांटेड। पेरेंट्स को जो चाहिए वो भी देने की कोशिश करेंगे, बट प्रायोरिटी आप हो, आपकी लाइफ है Right. विच यू हैव टू स्पेंड। बच्चे और पेरेंट्स And- का ना आपस में भी, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत ज्यादा जो है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। पहले बच्चे अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते थे। अभी कई बार हम लोग रिश्ता करा रहे होते हैं, समटाइम्स हम पेरेंट्स आके हमारे सामने बोलेंगे अरे इन दोनों को साथ में रहना है, दे शुड बी फिजिकली अट्रैक्टिव, सेक्सुअली अट्रैक्टिव, तभी तो शादी चलेगी ना। हाँ. तो वो ओपन डिस्कशंस होना स्टार्ट हो गया। That's nice. Every time I meet both of you, I learn about, these latest developments that's happening in the marriage market, which I am not aware about. Sorry, marriage market, which I am not aware about. So it's good to know that, okay, we are moving So towards some of the best is that step. अभी क्या हुआ, अब जैसे अब हम डिवोर्स की बात करते हैं या तो मतलब अभी भी मेरे पास एक रीसेंट कोई आए हुए थे, तो हर हस्बैंड गॉट एक्सपायर थ्रू कार्डियक अरेस्ट। अब वो अपने बेटे के साथ आई हुई थी, बेटा मदर दोनों थे, कि आई हैव माई ओन आई विल बी एंटरिंग इनटू माई न्यू लाइफ, न्यू करियर, सो मॉम विल बी अलोन, सो आई वांट हर टू सेटल इन हर That's लाइफ। very sweet. सो तो वो एक जो हमारी एक्सेप्टेंस है इंडियन कम्युनिटी में, इंडिया में, इन सोसाइटी में, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ वेरी गुड। सो बोथ पेरेंट्स एंड boys and girls, like they are understanding Right. the Yes, importance of I life. remember he mentioned about this in the first time also. Yeah. When we had just met, we had not even started Yeah, shooting Webcast. That's when you told me Yeah, of these yeah, stories. It was really nice. तो क्या है कि subject is changing. It is very challenging also for us day by day because of the expectation and preferences of the boys and girls. क्योंकि आप सोचो कि सभी लोग जो आते हैं परिवार के, मदर फादर और उनके सिबलिंग्स, सबकी अपनी कुछ ना कुछ प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस है। सबको सब कुछ देना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप कर Yeah. लेंगे, मुझे भरोसा है आप दोनों। थैंक यू सो मच। आपको आपके ऊपर है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे है। Okay, so very quickly, just for the audience and like for a crux, what are the pointers to save a failing marriage, to to avoid divorce if you are on the brink of it? One is communication. Has to be communication. Communication is the Key of only key of marriage. where you can. Then self-awareness, Okay. and then you should spend lot of time. And even like if someone is shouting, other if one partner is shouting, then listen it with very patiently and try to understand कि what is the reason, and उसको उसी समय resolve करो। This is for people who are married. What about people who are not married? हाँ, fear of missing out, that FOMO should not be there, because जिंदगी में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। जो सब है कुछ तो नहीं मिलेगा। सब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको fear of missing out, प्लस जब आप अपने रिश्ता देख रहे हो तब भी दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट थिंग, बिकॉज आपकी क्या नीड्स हैं आप ओपनली दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। आपको जो पार्टनर के साथ, आप जिसके साथ एक रिलेशनशिप में बनने जा रहे हो, क्या चीज आपको मोस्ट अट्रैक्ट कर रही है, यू शुड फोकस ऑन दैट, यू शुड डिस्कस विद देम। तो कम्युनिकेट जितना करेंगे आपको, तो आपको पता हो कि लाइफ में व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, यू विल नॉट गेट 10 out of 10। आपके लिए मेन प्रायोरिटी अगर 2-3 है, इफ यू आर गेटिंग दीज 2-3 थिंग्स, देन यू शुड एक्सेप्ट दैट। देखो, जब दो लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, अरेंज मैरिजेस के थ्रू या वैसे भी, तो अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं जैसे जैसे वो मिलना शुरू करते हैं। क्योंकि और जब आपको लगता है कि ठीक है अब हम एक दूसरे के पास्ट और फ्यूचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और तब हम साथ चल सकते हैं, तो ये डिसीजन लेना चाहिए। Right. क्योंकि किसी के लिए क्या होता है कि छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है, किसी के लिए वो बड़ी चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेस एक्सपेक्टेशंस, Less expectation. And- expectations always lead to sadness. यस, एंड फेरी टेल वाली वेडिंग से बाहर आना बाहर आ चाहिए। जाओ
बाहर आ जाओ. और Practical. कोई भी चीज हम सोच लेंगे, हम Invest कर on real लेंगे, things, invest हाँ. on better things. या ऐसा सोच के डिसीजन मत लो. पूरी बात अपनी साफ तरीके से रखो, कम्युनिकेट करो. और अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला उसको समझ रहा है, समझना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा मान रहा है, कि उसको समझ रहा है, उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, आगे चल सकता है, तो ही शादी का डिसीजन लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं. And give your 100%. Give your 100%. Yeah. That's the make my lagan way. They also give their या 100%. क्योंकि शादी हमेशा चलाने से चलती है. जैसे आप अपने बिजनेस के लिए रोज काम करते हो, उसको चलाने के लिए रोज सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, वैसे ही शादी को भी हमेशा चलाने से ही चलेगी. रोज आपको उसको इनपुट देने ही पड़ेंगे. Thank you so much for joining us, and to our listeners and viewers, let us know, do you think marriage is becoming obsolete, or do you believe it's just adapting to modern times, just like Sachinji and Shaluji do? We'd love to hear your thoughts. Until next time, stay curious and keep the conversation on marriage going. It's very important. This is your host Geetika Mishra signing off from Wetcast.